When it comes to the anthropological theories, the first theory we have to read is classical evolutionism. क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म के अंदर तीन स्कूल आते हैं ब्रिटिश अमेरिकन एंड कॉन्टिनेंटल दिस इज also called German school and under British school the scholars are A.B. Tyler, R.R. Merritt, Henry Maine, McLennan, Fraser and Spencer and under American school the one of the most important scholar is Morgan, L.H. Morgan and under continental school scholars are Beethoven and Bastian. To begin with, we will read E.B. Tyler and R.R. Merritt. So let's see. This is a one pager of both the scholars, E.B. Tyler and R.R. Merritt. It's a relatively smaller topic, but to begin with E.B. Tyler, we will read introduction, his publications, his contribution, criticism, and conclusion. तो E.B. टायलर जी की बात की जाए इनको पढ़ने से पहले हमें कल्चर की डेफिनेशन पढ़ना बहुत जरूरी है जो कि ईबी टायलर ने ही दी थी क्यों क्योंकि हर एंथ्रोपोलॉजी थ्योरी कल्चर के अराउंड ही रिवॉल्व करती है द होल कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन कल्चर on studying culture on understanding culture the origin evolution development spread of culture somehow in every anthropological theory we hear the word culture again and again so let's see given by E.B. Tyler, culture is a complex whole. This is the first keyword. It's a complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, any other capabilities and habits acquired by man. This is the second keyword. As a member of society. This is the third keyword. These are very important. As we can see that culture is acquired by man rather biologically inherited. It is not biologically inherited. It is acquired by man after becoming a member of society. When we become a member of society, we acquire culture. Culture can include both material as well as non-material things. Material include type of housing, type of food we eat, type of clothes we wear, and type of tools we use, and many other things. And in the non-material culture include the belief system, value system, religious practices, rituals, and etc. तो कल्चर की डेफिनेशन के बाद अब अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो ईबी टायलर जी ही वाज बोर्न ऑन 2nd of October 1832 in England. Of course, he was a British anthropologist. He was the keeper in museum in Oxford, and the next year he became the reader in the same university. He is also called father of anthropology as well as the father of modern anthropology. He is father of culture, father of comparative ethnology. We will see what is this, and he is also called culturologist because after his contribution, culture became the central theme of anthropology. These things are good for introduction as well as conclusion. If a specific question comes on E.B. Tyler. After introduction, these are the publications. There are four publications which are important publications mentioned here. पब्लिकेशन के साथ साथ उनका थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी लिखा है कि उस पब्लिकेशन में उन्होंने उस बुक में उन्होंने क्या कहा है उसका कंक्लूजन क्या निकाला है क्या आइडिया प्रेजेंट किया है ये ही चीजें आगे इलेबोरेट की गई है आगे कंट्रीब्यूशन में यहाँ पे क्यों लिखा है ताकि वी कैन रिलेट व्हेन द टाइम कम्स वी कैन यूज इट मोर एफिशिएंटली अगर सिर्फ नाम पढ़ लेंगे और रट्टा मार लेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि यही सब हम मेंशन करते हैं इन अदर टॉपिक्स लाइक मैरिज रिलीजन डिसेंट किनशिप इन सब में यही सब मेंशन करते हैं ईबी टायलर जी के नाम के साथ उनकी पब्लिकेशन एंड द ईयर सो द फर्स्ट पब्लिकेशन was Mexico and the Mexicans, published in 1861. What E.B. Tyler tried to do, that he tried to reconstruct the cultural history of Mexico. तो उन्होंने इसके लिए क्या मेथड यूज किया उन्होंने जो मटेरियल रिमेन्स थे कल्चर के द एम्पेरिकल एविडेंस लाइक राइट्स कस्टम्स बिलीफ मिथ्स फोकलोर्स इन सबको स्टडी किया और
इन सबको असाइन किया एक टाइमलाइन में कि कैसे कल्चर इवॉल्व हुआ जो कि आज है मेक्सिको सिटी का, द मेक्सिको कंट्री और सिटी वट एवर। सो टेक्निक क्या यूज की उन्होंने इसके लिए, उन्होंने फर्स्ट टेक्निक इज ही असाइंड द कंडीशन ऑपोजिट टू प्रेजेंट वन टू अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। इट मीन्स कि उन्होंने देखा कि मेक्सिको मैक्सिकन कल्चर के अंदर जो जो चीजें आज की सोसाइटी की आज के कल्चरल ट्रेडिशन से डिफरेंट है, उनको एक अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में असाइन कर दिया, क्योंकि वो आज की अगर नहीं है तो वो कभी ना कभी पुरानी स्टेज की होंगी। द सेकंड concept he used was the concept of survival. It was also used by Maine and McLennan. We will see later on. The concept of survival में क्या है कि both again it also includes both material and as well as non-material culture. Concept of survival में क्या है कि जो भी चीजें आज मैक्सिकन कल्चर में प्रेजेंट थी बट उनकी यूटिलिटी नहीं है, दे आर एग्जिस्टिंग बिकॉज ऑफ हैबिट ऑफ मैन। हाँ, उस चीज की हैबिट हो चुकी है, ये हर सोसाइटी में प्रेजेंट है, हर कल्चरल हर सोशल ग्रुप में प्रेजेंट होगा। जो दीज आर कॉल्ड द कल्चरल सर्वाइवल्स, कल्चरल रिमेन जो होते हैं वो रह जाते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल से समझे, गॉड ब्लेस यू। अर्लियर बिलीव वाज दैट व्हेनेवर यू स्नीज योर सोल tries to leave your body, so the other man has to say God bless you to counter that, to stop that. बट इन टुडे सोसाइटी इसकी यूटिलिटी खत्म हो चुकी है, क्योंकि ऐसा नहीं है, वी नो इट इज नॉट ट्रू, बट वी स्टिल यूज इट बिकॉज ऑफ हैबिट। हमें हैबिट हो चुकी है इस चीज की। सो दिस इज द कल्चरल सर्वाइवल। सो दिस वाज also the concept which used while reconstructing the cultural history of Mexico. The next publication is the researches into the early history of mankind and development of civilization, published in 1865. इसमें मेनली ईबी टायलर ने दो क्वेश्चंस को एड्रेस किया। फर्स्ट क्वेश्चन वाज दैट whether the differences between the civilized and savage, so called civilized and savage society, जो उन्होंने अपनी यूनिलीनियर स्कीम दी थी वो आगे हम पढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि इन दोनों में जो कल्चरल डिफरेंसेस है वो किस वजह से है, या तो सैवेज जो पीपल हैं उनका डिजेनरेशन हुआ है, कल्चरल डिजेनरेशन, या फिर जो सिविलाइज्ड हैं उनकी प्रोग्रेस हुई है, कल्चरल प्रोग्रेस हुई है। इन दोनों में से क्या है? उस टाइम के कुछ लोग, कुछ स्कॉलर्स इसको ट्रू मानते थे कि जो सैवेज है उनकी कल्चरल डिजेनरेशन हुई है, बट टाइलर काउंटर दैट। उन्होंने कहा कि उन्होंने अप्रोच किया इसकी, उन्होंने मटेरियल और नॉन मटेरियल एस्पेक्ट है जो कल्चर सर्वाइवल जो उस टाइम पे सोसाइटी में अभी तक कल्चर प्रशिष्ट था, उसके एलिमेंट्स को कलेक्ट किया, उनको स्टडी किया बाय कंपैरेटिव एनालिसिस, और उसको एक टाइम लाइन में, टाइम सीक्वेंस में पुट किया, और उसके बाद वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि द कल्चर एज अ होल हैज प्रोग्रेस्ड। ये क्लासिकल इवोल्यूशनलिज्म का जब हम जनरल आइडिया की बात करते हैं तब ये पॉइंट पुट किया जाता है, दैट द कल्चर एज अ होल हैज प्रोग्रेस्ड, मतलब कि सैवेज पीपल भी एक दिन सिविलाइज्ड बन जाएंगे, दे आर अंडरगोइंग द कल्चरल प्रोग्रेशन। And the second question he put was, why are all cultures have religion, family, language, marriage, art, craft? हर कल्चर में ये सब चीजें प्रेजेंट क्यों हैं? कोई भी कल्चर ऐसा नहीं है जिसमें ये सब ना हो, तो ऐसा क्यों है? He gave the answer that it was due to psychic unity of mankind. That two different persons, whether they are connected or not, they will think in the same way. उनका कल्चरल प्रोग्रेशन सेम स्टेजेस से होके जाएगा। दैट वाज गिवन एज सेवेजरी, बारबरिज्म एंड सिविलाइजेशन, एज सेड बाय बी टाइलर। तो उनके बीच में कांटेक्ट हो या ना हो, दे विल स्टिल बी गोइंग थ्रू दी स्टेजेस। इन्होंने ईबी टाइलर जी ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया? सिमिलर, उन्होंने देखा कि सिमिलर कल्चरल ट्रेड्स पाए जाते हैं किनमें, उन उन लोगों में जिनका कोई हिस्टोरिकल कनेक्शन भी नहीं है। ये कैसे है? क्योंकि बिकॉज ऑफ साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, हमें द मेंटल फ्रेमवर्क इज सिमिलर। इसका एग्जांपल उन्होंने कहा कि जो ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स हैं वो अफ्रीकन ट्राइब्स की तरह अपनी बॉडी पे स्कार बनाते हैं, दे प्रैक्टिस सर्कमसिजन लाइक ज्यूज एंड अरब्स, एंड दे बार मैरिज इन द फीमेल लाइन लाइक इरिकोय पीपल।
Uh, in the third publication, The Primitive Culture, this is very important. The idea of evolution of religion also is given in this publication. In the primitive culture, basically there are three outcomes. He defined the culture, he gave the definition of culture. This is that definition. And he gave the doctrine of survival, which he used while studying Mexico and Mexicans in this one. The cultural the culture remains the culture concept of survival. So that's why he is also called the father of comparative ethnology. Means दो cultures को उठाया जाए, उनके components को note down किया जाए, different cultures को, और इनके cultures को compare किया जाए आप आमने सामने based on empirical evidences, और इसको बोलते हैं comparative ethnology. E.B. Tyler made that idea famous in anthropology. And the third is the most important thing, the theory of animism. How religion evolved from animism to polytheism to monotheism. We will study it. ये आइडिया भी इन्होंने इसी बुक में दिया था. When we will study religion in anthropology, paper 1, this book is mentioned again and again. Last publication is Anthropology and Introduction to the Study of Man and Civilization. ये ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें भी एक पॉइंट है जो हम बाद में पढ़ेंगे. नाउ कम्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईपी टाइलर. इनके कंट्रीब्यूशन के अंदर हम पढ़ेंगे इस कंट्रीब्यूशन और कल्चरल हिस्ट्री, his contribution on primitive religion, his contribution on matriarchal form of society, and other contributions. First is his contribution on science of cultural history. A.B. Tyler said culture is a historical process and its study is historical study. Of course, we are studying culture, cultural development in history, how culture evolved throughout the history. And second, he defined culture. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. इन्होंने कल्चर की एक बेहतरीन डेफिनेशन दी. इससे हम और चीज़ें क्या निकाल सकते हैं कि कल्चर इज एट्रीब्यूट ऑफ मैन. इट इज एक्वायर्ड, ऑफ कोर्स इट इज नॉट बायोलॉजिकली इनहेरिटेड. इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सोशल लर्निंग. As a part of a social group, we learn culture after birth. It always evolves from simple to complex. ये आइडिया क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म का भी एक जनरल आइडिया है. उसके अंदर भी हम इसको लिखते हैं कि दे सेड कल्चर इवॉल्व्स फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, फ्रॉम homogeneous to heterogeneous. एंड नेक्स्ट इज कल्चरल डिफरेंसेस आर द रिजल्ट ऑफ प्रोग्रेस. ये हम ऊपर भी देख चुके हैं. व्हेन अ क्वेश्चन कम्स टू हिज माइंड कि सिविलाइज का प्रोग्रेस हुआ है या फिर सैवेज का डिजेनरेशन हुआ है, तब उन्होंने कहा कि कल्चर एज अ होल हैज प्रोग्रेस्ड. एंड लास्ट, इट्स अ कॉम्प्लेक्स होल. ये इंपॉर्टेंट है. उन्होंने कहा कि कल्चर इज अ कॉम्प्लेक्स होल, जिसके अंदर एक मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ छोटे कंपोनेंट्स होते हैं. हमें सबको पढ़ना जरूरी है. ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ चीज़ों को इग्नोर किया जा सकता है क्योंकि ये इट्स अ माइन्यूट पार्ट ऑफ कल्चर. ऐसा नहीं है. टू गेट द डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सर्टेन कल्चर, हमें हर एक फैसेट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है कल्चर के. सो इट्स अ कॉम्प्लेक्स होल. He also disagreed with Auguste Comte ट्राई स्कीम. इन्होंने जो इवोल्यूशन की स्कीम दी थी उससे भी ये डिसएग्री करते हैं. इट्स जस्ट अ स्मॉल फैक्ट. हम आगे बढ़ेंगे इसे. जो इनकी स्कीम थी, ईबी टायलर जी ने जो स्कीम दी, इन्होंने कहा कि यूनिलीनियर इवोल्यूशन ऑफ कल्चर. इन्होंने कहा कि मैन पास थ्रू सेवेजरी, बारबरिज्म, सिविलाइजेशन. कोई भी सोशल ग्रुप है वो सबसे पहले सेवेजरी में आएगा, फिर बारबरिज्म स्टेज में आएगा, फिर सिविलाइजेशन. इनको अगर करेक्टराइज करना है तो सेवेजरी के अंदर फूड गैदरर होंगे एंड द रीजन विल बी एनिमिज्म. एनिमिज्म मींस बिलीफ इन सोल. उसके बाद होगा बारबरिज्म आएगा, डोमेस्टिकेशन शुरू हो चुकी होगी, फूड प्रोडक्शन शुरू हो चुकी होगी, और रिलीजन विल बी पॉलिथिज्म. पॉलिथिज्म मींस बिलीफ इन मल्टीपल गॉड्स. व्हेन वी रीच सिविलाइजेशन, द आर्ट ऑफ लर्निंग वुड हैव डेवलप्ड और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो चुकी होगी. रिलीजन होगा मोनोथिज्म, मींस बिलीव इन वन गॉड ओनली. एक ये इंपॉर्टेंट चीज है कि क्योंकि इस यूनिलीनियर इवोल्यूशन ऑफ कल्चर की जो स्कीम है, इसके लिए अक्सर क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट को और एबी टायलर को क्रिटिसाइज किया जाता है, क्रिटिसिज्म किया जाता है कि इतना सिंपल नहीं है जितना दिखा दिया है. बट एट द सेम टाइम टाइलर ने किसी भी स्पेसिफिक कल्चर को किसी भी स्कीम में पुट नहीं किया.
उन्होंने सिर्फ एक स्कीम दी। उन्होंने किसी भी कल्चर को सैवजरी में नहीं डाला, किसी भी कल्चर को बारबरिज्म में नहीं डाला, किसी को भी सिविलाइजेशन में नहीं डाला। बट एट द सेम टाइम ही कंसिडर्ड विक्टोरियन इंग्लैंड टू बी अ पार्ट ऑफ सिविलाइजेशन। उन्होंने कहा कि जो इंग्लैंड है वो सिविलाइजेशन पे पहुंच चुका है। टेक्निक्स क्या यूज की उन्होंने ड्यूरिंग ऑल दिस? उन्होंने वही जो हमने मेक्सिको एंड मैक्सिकन में पढ़ा है, सेम टेक्निक्स यूज की उन्होंने जो मैक्सिकन सोसाइटी के कल्चर को पढ़ते स्टडी करते हुए की थी। उन्होंने कंडीशंस असाइन की जो उनको ऑपोजिट लगी आज की कंडीशन से। उन्होंने उस पार्ट ऑफ कल्चर को किसी अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में डिनोट कर दिया। सेकंड की कंसेप्ट ऑफ सर्वाइवल। जो कल्चरल ट्रेड्स अभी भी सरवाइव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ हैबिट, नॉट बिकॉज ऑफ यूटिलिटी। वो यूटिलिटी खो चुके हैं बट वो अभी भी परसिस्ट कर रहे हैं सोसाइटी में क्योंकि उसकी हैबिट हो चुकी है। उन्होंने नेक्स्ट इज टेलर्स कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑन कल्चरल हिस्ट्री। ये इसी का पार्ट है बट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था तो इसके लिए, क्योंकि बुक चेंज होगी। उन्होंने उनकी जो लास्ट बुक थी एंथ्रोपोलॉजी 1881, यहाँ पे लिखा है एंथ्रोपोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ मैन एंड सिविलाइजेशन 1881। इसमें उन्होंने लिखा कि जो ये मैंने स्कीम दी है ना, फ्रॉम सेवेजरी टू बारबरिज्म टू सिविलाइजेशन, ये कोई लॉ नहीं है जिसके बेसिस पे हिस्ट्री चल रही है। इट इज नॉट द ओनली फोर्स ऑफ हिस्ट्री कि ये ही होगा, ऐसे यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। तो ये मतलब कि उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ एक टूल दिया है मैंने टू रिकंस्ट्रक्ट द कल्चरल हिस्ट्री बेस्ड ऑन एम्पेरिकल एविडेंसेस। आप इसको यूज करके कल्चर से कंपैरेटिव एनालिसिस कीजिए और एक कॉन्टिन्यूटी बनाइए कल्चरल हिस्ट्री में, उसके थ्रू उसको स्टडी कीजिए हाउ कल्चर डेवलप्ड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Next contribution of Tyler is contribution to the study of primitive religion. It is important when we study religion in paper 1, we have to mention all this. ए बी टाइलर जी का कंट्रीब्यूशन भी वहां पे मेंशन करना पड़ता है। तो जो जो भी हम इसमें पढ़ेंगे वो एक ही बुक से आया है, प्रिमिटिव कल्चर, जो हमने इनकी पब्लिकेशन को ऊपर डिस्कस किया था, प्रिमिटिव कल्चर 1871। और जो कल्चर का जो पार्ट पढ़ा है हमने वाला, ये भी इसी में से आया है। भी डेफिनेशन ऑफ कल्चर भी इसी में दिया था, फिर डॉक्टर सर्वाइवल थ्रू एनिमिज्म, प्रिमिटिव रिलीजन। जब भी इनमें से कुछ हम मेंशन करेंगे तो साथ में बुक मेंशन जरूर करना है, प्रिमिटिव कल्चर। तो जो डेफिनेशन दी ए बी टायलर ने, वो बहुत वाइड डेफिनेशन दी। सिंपली दैट बिलीफ इन स्पिरिचुअल बीइंग्स। जब इन्होंने रिलीजन को डिफाइन किया, सिंपली डिफाइन किया बिलीफ इन स्पिरिचुअल बीइंग्स। इन्होंने कहा कि रिलीजन वाज कल्चरल यूनिवर्सल, कि रिलीजन जो है वो हर एक कल्चर का पार्ट है। हर कल्चर में आपको रिलीजन मिलेगा। क्यों? हमने ऊपर पढ़ा था कि बिकॉज ऑफ साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। दैट्स व्हाई रिलीजन इज प्रेजेंट इन एवरी सिंगल कल्चर। और जो स्कीम दी इन्होंने कहा कि सबसे पहले एनिमिज्म आया, इसके साथ सैवेजरी में, एज अ पार्ट ऑफ सैवेजरी। फिर आया पॉलिथिज्म बार्बरिज्म में। फिर आया मोनोथिज्म सिविलाइजेशन में। हम हम ये देखेंगे कि किस तरीके से इवॉल्व हुए और इनके साथ साथ और सेकेंडरी फीचर्स क्या आए एज अ पार्ट ऑफ रीजन। सो लेट्स सी। सबसे पहले एनिमिज्म होता है बिलीफ इन सोल, बिलीफ इन स्पिरिट। तो कैसे आया है बिलीफ इन स्पिरिट? कैसे शुरुआत कैसे हुई इस चीज की? तो प्रिमिटिव मैन, ईबी टायलर जी के हिसाब से जो प्रिमिटिव मैन था उसको कुछ ज्यादा समझ आता नहीं था। ही वॉज अ सैवेज फिलोसफर। बट उन्होंने एक चीज नोटिस की, डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड डेड। उन्होंने देखा कि एक जो जिंदा है और एक जो मर गया है इसमें डिफरेंस है। उन्होंने स्लीप, विजन, ड्रीम्स, इन सब को भी अपना नोटिस किया कि कुछ चीजें सपनों में आती हैं और एक इंसान मर चुका है, एक जिंदा है, इसमें भी डिफरेंस है। सपनों में कुछ लोग आते हैं, ये कुछ इंसेस्टर हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, या फिर अननोन कोई आ जाता है सपनों में। वो उसको समझ नहीं आया।
बट उसने इसका एक कंक्लूजन निकाला कि मैन जो होता है वो पोजेस करता है तीन चीजें: मटेरियल बॉडी, अ लाइफ एंड अ फैंटम। फैंटम इन अदर वर्ड्स ऑल्सो इविल स्पिरिट कह सकते हैं। तो यहाँ से आया आइडिया ऑफ सोल। कैसे कि आफ्टर डेथ बॉडी तो रह जाती है, बट सोल लीव्स द बॉडी एंड समटाइम इट रीअपियर्स इन ड्रीम्स, उसके सपनों में आता है जो सोल होता है। तो इसका मतलब हुआ कि सोल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट आफ्टर डेथ। डेथ के बाद सोल रह जाता है, और हर एक चीज में सोल है। हमारे सैवेज फिलोसफर जी ने कहा कि हर एक चीज में सोल है, वेदर लिविंग और नॉन लिविंग। दिस इज कॉल्ड एनिमिज्म। फर्स्ट स्टेज आ चुकी है सैवेजरी में, बिलीफ इन सोल आ चुका है। अब देखते हैं पॉलीथिज्म कैसे आया। पॉलीथिज्म के लिए हम देखते हैं कि सबसे पहले प्रेयर एंड एक्टिव वर्शिप कैसे आई। जब तो उन्होंने देखा कि जो सोल है वो कभी भी कहीं भी आ जाता है, कहीं भी मूव कर सकता है, कहीं भी कभी भी मूव कर सकता है, वो कहीं भी कभी भी आ जाता है। तो वो ऑफ कोर्स बॉडी से तो सुपीरियर हुआ, क्योंकि बॉडी को तो चल के जाना पड़ेगा, वो हर जगह नहीं रह सकती। तो ऑफ कोर्स सोल जो हुआ वो सुपीरियर हुआ। अब जो सोल जो सपनों में आ रहा था वो उनके रिलेटिव्स थे, एंसेस्टर्स थे, कुछ रिलेटेबल लोग आते थे जो जिनको वो जानते थे। तो उन्होंने एक तो मान लिया कि चलो कुछ सोल्स हैं जो फ्रेंडली हैं। तो उन्होंने कहा कि सोल प्रोटेक्टेड और फैमिलीज एंड ट्राइब, हमारी प्रोटेक्शन के लिए है, वो फ्रेंडली सोल है। अब अगर ऐसा है तो उनसे कम्युनिकेट किया जाए। अगर वो फ्रेंडली है तो उससे हेल्प मांगी जाए, उससे कम्युनिकेट किया जाए। कम्युनिकेशन कैसे किया जाए? देयर कम्स द प्रेयर, प्रेयर करके। अब जब प्रेयर का फिनोमिना आ चुका है रिलीजन में, और इसके साथ साथ क्या आया, जब उन्होंने देखा कि सोल और स्पिरिट्स हैं जो वो कहीं तो रहती होंगी ना मरने के बाद, तो उससे कंसेप्ट आया आफ्टर लाइफ का, कि हाँ, इंसान के मरने के बाद भी एक आफ्टर लाइफ है जो कि सोल एंड स्पिरिट के फॉर्म में रहती है। इसके जब सोल एंड स्पिरिट का ये जो बिलीफ मजबूत होता गया, तो इससे एक और चीज आई, स्पिरिट पोजेशन। कि सोल कहीं किसी को भी पोजेस कर सकता है, अगर वो ड्रीम्स में आ सकता है, कभी भी आ सकता है, तो वो किसी को पोजेस भी कर सकता है। ये आइडिया भी सामने आया स्पिरिट पोजेशन का। इसके साथ साथ एक और कंपोनेंट आया एज अ पार्ट ऑफ रिलीजन, प्रैक्टिस ऑफ एक्सोर्सिज्म। जो एक्सोर्सिस्ट होगा वो बॉडी से स्पिरिट को निकालेगा। ये एक प्रोफेशन है, रिलीजियस प्रोफेशन हो गया ना ये। इसके बाद आया फेटिसिज्म। उन्होंने कहा कि जब ऊपर कह चुके थे कि एवरीथिंग हैज सोल, लिविंग और नॉन लिविंग, तो जो सोल इन आइडल हुआ ना, जब उन्होंने कहा कि नॉन लिविंग में भी है, तो एक आइडल्स में भी सोल होगा। अब उसमें होगा तो फिर आ जाएगा बिलीफ इन सोल, और इस इन्हीं को प्रेयर करना शुरू कर देंगे वो। एनी नॉन लिविंग थिंग, इट कैन बी ट्री, स्टोन, और एनी टूल। वहां से आता है फेटिशिज्म। इसके बाद आता है सेकंड स्टेज, पॉलीथिज्म। पॉलीथिज्म कैसे है? बिलीफ इन सोल हो गया, मल्टीपल सोल्स हैं। इन्होंने कहा कि कुछ जो मल्टीपल स्पिरिट्स भी कह सकते हैं, स्पिरिट सोल कुछ भी कह सकते हैं। जो कुछ स्पिरिट्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। जैसे हर एक स्पिरिट है, कोई एक थंडर के लिए, एक रेन रेन के लिए, एक एग्रीकल्चर के लिए, एक प्रोस्पेरिटी के लिए, अलग एक बर्थ के लिए। तो इनमें से कुछ तो इम्पोर्टेंट है। मान लो एग्रीकल्चर के लिए और बर्थ के लिए इम्पोर्टेंट है, ये एलिवेट हो गए, हायरार्की बन गई सोल्स की, स्पिरिट्स की। और जो कुछ थे उनको ऊपर रखा गया, कुछ को नीचे रखा गया, बट मल्टीपल स्पिरिट्स में बिलीफ से पॉलीथिज्म आ गया, बिलीव इन मल्टीपल गॉड। और इनको, इन स्पिरिट्स को गॉड की रैंक तक एलिवेट कर दिया गया। मल्टीपल गॉड्स आ गए इनके, इनमें जो भरोसा करने लगे जब, उसको पॉलीथिज्म बोलेंगे। देन कम्स द मोनोथिज्म। मोनोथिज्म कैसे? अब सभी गॉड तो इक्वल नहीं हो सकते ना, जैसे अभी बोला। तो जो इंपॉर्टेंट गॉड थे उनको तो ऊपर रखा गया, जो माइनर थे वो बैकग्राउंड में चले गए। वो कुछ कभी विद टाइम वो इग्नोर होते गए, इतने मेन स्ट्रीम नहीं रहे। तो जो एक गॉड बचा, उसी की प्रेयर होने लगी, उसी पे सब बिलीव करने लगे, विच इज सिंपली मोनोथिज्म, बिलीव इन वन गॉड।
इसका एग्जाम्पल है ब्रह्म परमेश्वर इन हिंदुइज्म, सुप्रीम बीइंग। जो एबी टाइलर जी ने प्रिमिटिव रिलीजन में कंट्रीब्यूशन दिया स्टडी करके, इसकी स्ट्रेंथ क्या थी? कोई स्ट्रेंथ होगी ना, जो इन्होंने इतनी स्ट्रॉन्ग स्टडी, इतनी स्ट्रॉन्ग थ्योरी दी कि आज भी हम बात कर रहे हैं। कुछ तो इसमें वैलिडेटिंग पॉइंट्स होंगे ना। तो इनके पास जो इथनोग्राफिक डाटा था वो बहुत ज्यादा था। और सबसे बढ़िया बात, इन्होंने हर एक अपने इथनोग्राफिक डाटा को एक एग्जाम्पल से, परफेक्ट एग्जाम्पल से इलस्ट्रेट किया। ये मेरिट्स में लिखा जा सकता है कल्चरल इवोल्यूशनिस्ट के। अगर जहाँ पे हम क्रिटिसिज्म लिखते हैं वहां पे उनके मेरिट्स भी लिखने हैं ना, उन्होंने जो चीज़ अच्छी की। तो एबी टायलर जी बहुत अच्छा इलिस्ट्रेट करते थे विद डीप एनालिसिस। वो अपने हर एक थ्योरी को एक परफेक्ट एग्जाम्पल से जोड़ते थे। एट द सेम टाइम कुछ वीकनेस भी होंगी। वीकनेस ये थी कि जो उनका एथनोग्राफिक डाटा था वो इनडायरेक्टली कलेक्टेड था, वो खुद ग्राउंड में नहीं गए। उन्होंने फील्ड वर्क नहीं किया, जो कि कल्चरल इवोल्यूशनिस्ट का क्रिटिसिज्म है ओवरऑल। और जो उनका इथनोग्राफिक डाटा था उन्होंने इनडायरेक्टली कलेक्ट किया, कहाँ से? ट्रैवलर से और मिशनरीज से। ये उनकी वीकनेस थी। उनकी ये जो स्टडी है इसकी वीकनेस थी। एंड सेकंड इज, उन्होंने रिलीजन का ओरिजिन और डेवलपमेंट तो बता दिया कि ओरिजिन ऐसे हुआ। पहले एनिमिज्म आया, फिर पॉलीथिज्म, फिर मोनोथिज्म, और ऐसे ऐसे डेवलप किया धीरे धीरे। साथ में प्रेयर वर्शिप आई, फेटिशिज्म भी आ गया, ये एक्सोर्सिज्म भी आ गया। बट उन्होंने उसका सोशल एस्पेक्ट को नहीं कवर किया। रिलीजन का कुछ सोशल एस्पेक्ट भी तो होगा ना। रिलीजन एक्ट एज अ कोहेरेंस इन अ सोशल ग्रुप, वो लर्निंग, एजुकेशन, है ना। इन टाइम ऑफ क्राइसिस के टाइम पे रिलीजन हेल्प करता है, मोरल मोरल बूस्ट करता है। ये एस्पेक्ट उन्होंने सोशल एस्पेक्ट कवर नहीं किया, जो सोशल डायमेंशन है रिलीजन की। रादर उन्होंने सिर्फ ओरिजिन और डेवलपमेंट, सुपरनेचुरल बिलीफ, सोल प्रेयर, एक ऐसे इसका ओरिजिन और डेवलपमेंट बताया उन्होंने। ये एक वीकनेस थी। थर्ड, हाँ वही सेम, ये कि टाइलर का जो आइडिया था रिलीजन का, उसने कॉग्निटिव एस्पेक्ट पे ज्यादा फोकस किया rather than social dimension. Now, the next contribution of Tyler is his view on matriarchal form of society and Kuwait. इनका जो मेन बिलीफ था वो था कि सोसाइटी जो पास हुई है, पहले मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, फिर बाद में पैट्रियार्कल सोसाइटी बनी है। इसको इन्होंने एक्सप्लेन किया सिंपली। इसके कॉन्ट्ररी भी कई कल्चरल एवोल्यूशनिस्ट ने, कुछ स्कॉलर्स ने इसके कॉन्ट्ररी भी अपने व्यूज दिए, वो हम देखेंगे आगे। इन्होंने एक ऐसे लिखा 1889 में, अ मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस अप्लाइड टू द लॉ ऑफ मैरिज एंड डिसेंट। इन्होंने स्टैटिस्टिक्स लगाई और डाटा कलेक्ट किया 282 साइट्स का। ये इंपॉर्टेंट है कि स्टैटिस्टिक्स का यूज किया गया, ये मेरिट्स में आता है इनके। और डाटा कलेक्ट किया 282 साइट्स का। इन्होंने वो डाटा कोरिलेट किया, उससे इन्होंने क्या आउटकम निकाला कि उन्होंने देखा कि मैट्रिलिनियलिटी एंड मैट्रिलोकैलिटी प्रीसीडेड पैट्रिलिनियलिटी एंड पैट्रिलोकैलिटी। ये पहले आई, ये बाद में आई। कैसे? उन्होंने कुवैत के एग्जांपल इसका है। कुवैत होता है कि हस्बैंड इमिटेट्स हिज वाइफ while गिविंग बर्थ, ही गोज टू बेड लाइक हर। वो वैसे ही बिहेव करता है जैसे एज इफ ही इज ऑल्सो गिविंग बर्थ। इट्स अ इट्स अ सिंबॉलिक गेस्चर ऑफ एंटरिंग इनटू पैटर्नल लाइफ। तो उन्होंने देखा कि जो ये प्रैक्टिस है ये मैट्रियार्कल सोसाइटी में absent है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वहां पे वुमेन की पोजीशन ऑलरेडी डोमिनेंट है, वो वुमेन इज ऑलरेडी डोमिनेटिंग इन दैट सोसाइटी। बट जो इंटरमीडिएट सोसाइटीज थी, पैट्री मैट्रिलिनियल सोसाइटीज थी जो ट्रांजिशन फेज में थी, उनमें से 20 सोसाइटीज में ये प्रैक्टिस की जा रही थी। बिकॉज बिकॉज मैन नीड टू एस्टेब्लिश हिज अथॉरिटी, तो वो उसको इमिटेट करेगा जो वुमेन कर रही है। क्योंकि ये हो चुका, ये पास था ना। तो मैन को लग रहा था कि सेम वैसा ही बिहेव करके आई विल एस्टेब्लिश माई अथॉरिटी। तो जो ट्रांजिशन फेज में जो सोसाइटीज थी उनमें कुवेड प्रैक्टिस किया जा रहा था। इसका मतलब ये बाद में आए, ये अभी बाद पैट्रिलिनियल आने वाली है मतलब कि। और उन्होंने देखा कि सिर्फ 8
पैट्रियार्कल सोसाइटीज में प्रैक्टिस कर रहे थे क्वेड एज अ सर्वाइवल, कल्चरल सर्वाइवल था वो। बाकियों ने सब ने ड्रॉप कर दिया था, ये प्रैक्टिस जो थी सबने छोड़ दी थी क्योंकि इसकी यूटिलिटी ही नहीं बची थी। क्यों नहीं बची थी? क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी में मैन की पोजीशन डोमिनेंट होती है, तो इसमें जरूरत ही नहीं है कुवैत की। उसको क्यों करना है? अगर उसने अचीव कर लिया तो वो इमिटेट ही नहीं करेगा अपनी अथॉरिटी बनाने के लिए, वो क्योंकि कर चुका है वो स्टेटस अचीव। सो अकॉर्डिंग टू ईबी टाइलर, सोसाइटी पास फ्रॉम मैट्रियार्कल टू पैट्रियार्कल। ये बेसिक आइडिया था इनका। अदर कॉन्ट्रीब्यूशंस ईबी टाइलर जी के, इनका सबसे मेन कंट्रीब्यूशन था कि इन्होंने एंथ्रोपोलॉजी को एक इंडिपेंडेंट और साइंटिफिक फील्ड बना दिया था साइंस का। एक इंडिपेंडेंटली एंथ्रोपोलॉजी एक फॉर्मल सब्जेक्ट बन चुकी थी। सेकंड, ही यूज स्टैटिस्टिक्स इन एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च, जैसे हमने देखा ड्यूरिंग ही स्टडी ऑन मैट्रियार्कल फॉर्म ऑफ सोसाइटी, ही यूज्ड स्टैटिस्टिक्स। ये अच्छा एग्जांपल है। अगर हम ये पॉइंट लिख रहे हैं तो एग्जांपल में ये भी लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग दिस स्टडी ईबी टायलर यूज्ड स्टैटिस्टिक्स। थर्ड इज, मान लेते हैं कि इनको कल्चरल इवोल्यूशनिस्ट को क्रिटिसाइज किया जाता है कि इन्होंने फील्ड वर्क नहीं किया, ये सेकेंडरी डाटा लेते थे, अपनी कोई जाके कलेक्ट नहीं करते थे, सिर्फ मिशनरीज और ट्रैवलर का डाटा लेते थे। बट एबी टाइलर रिकॉग्नाइज द नीड फॉर साइंटिफिकली ओरिएंटेड फील्ड वर्क। तो इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को भेजा ग्राउंड में, इन्होंने कहा कि इथनोग्राफिक डाटा मटेरियल और डाटा कलेक्ट करके आइए, और ये ही आगे जाके एंथ्रोपोलॉजी का हॉलमार्क बन गया, फील्ड वर्क इज नेसेसरी। एंड द लास्ट इज, ही इज आल्सो इंस्ट्रूमेंटल इन फाइंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन। इस इन्होंने उन ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन में भी हेल्प की जो कि प्रैक्टिस ऑफ फील्ड वर्क को फोस्टर कर रहे थे, उनको बढ़ावा दे रहे थे। नाउ कम्स द क्रिटिसिज्म। ऑफ कोर्स ये सब क्रिटिसिज्म, इनमें से कुछ जनरली कल्चरल इवोल्यूशनिस्ट के क्रिटिसिज्म में भी लिखा जा सकता है, उनके सबके। फर्स्ट इज ही, ऑफ कोर्स ही इज आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट। उन्होंने सेकेंडरी डाटा यूज किया किसी भी थ्योरी को देने के लिए। सेकंड, नॉन साइंटिफिक एथनोग्राफिक डाटा, ऑफ कोर्स क्योंकि ट्रैवलर्स और मिशनरीज कलेक्ट कर रहे हैं ना डाटा, तो बायस हो सकता है। बट एट द सेम टाइम ईबी टाइलर ही चेक द एक्यूरेसी बाय कंपैरेटिव एनालिसिस। इसके लिए भी इनको काफी अभी तक याद किया जाता है कि इन्होंने जो कंपैरेटिव एनालिसिस पे जोर दिया टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ डाटा। मान लिया कि वो नॉन साइंटिफिक डाटा था, इनडायरेक्ट डाटा था, बट वो एक्यूरेसी भी इंश्योर करते थे। अब वो कितनी एक्यूरेसी अचीव हो पाती थी वो कह नहीं सकते। ही डिड नॉट एक्सप्लेन द सोशल करेक्टर ऑफ रिलीजन, ऐसे हम ऊपर पढ़ चुके हैं। एंड ही कंसिडर एनिमिज्म टू बी द ओनली ओरिजिन। इन्होंने कहा कि रिलीजन हर जगह, वर्ल्ड में कहीं भी, हर जगह सबसे पहले एनिमिज्म ही आएगा, बिलीव इन सोल, एनिमिज्म ही आएगा। तो इसको क्रिटिसाइज किया गया, ऐसा नहीं है जरूरी। कंक्लूजन देखे तो ये अच्छा कंक्लूजन है। लोई थे जो स्कॉलर, उन्होंने कहा 1937 में बोला कि किसी ने भी एथनोलॉजी को इतने बढ़िया तरीके से और कॉमन मैन के सामने प्रेजेंट नहीं किया है जैसे कि बी टायलर जी ने किया है। वो उन्होंने इतना बेहतरीन प्रेजेंट किया है कि आज तक साइकोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन, बायोलॉजिस्ट, फिलोसफर उनको मेंशन करते हैं जब भी वो प्रिमिटिव थॉट या बिहेवियर की बात करते हैं। एंड वन मोर इज, he confirmed the culture as the central theme of anthropology. Of course, that's why he is called culturologist. This is all about Mr. E.B. Tyler. And second is R.R. Merritt. ये E.B. टाइलर जी के स्टूडेंट थे। इनका रिलेटिवली छोटा टॉपिक है। इनका बैकग्राउंड था ब्रिटिश, ये भी ब्रिटिश क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट थे, स्टूडेंट थे E.B. टाइलर जी के। इन्होंने दो पब्लिकेशंस की, द थ्रेशोल्ड ऑफ रिलीजन। ही ऑल्सो रोट द बायोग्राफी ऑफ टाइलर इन 1996। पहले ये देख लेते हैं। इन्होंने मेनली टाइलर जी के जो कंट्रीब्यूशन थे उसको हाईलाइट किया। तो अगर हम टाइलर के बारे में भी लिख रहे हैं और उनके उसमें
तो आर आर मेरिट जी को भी मेंशन कर सकते हैं कि एज सेड बाय आर आर मेरिट इन इन द बायोग्राफी ऑफ टेलर की ये सब किया है उन्होंने। तो इनडायरेक्टली भी मेंशन किया जा सकता है, दो स्कॉलर्स के नाम आ जाएंगे इस हिसाब से। तो उसमें बायोग्राफी में लिखा कि इबेटालॉजी ने जो कंसेप्ट ऑफ एनिमिज्म दिया उसको हाईलाइट किया, कंसेप्ट ऑफ कल्चर उन्होंने डेफिनेशन दी, और कल्चरल रिवॉल्यूशन का बताया कैसे हुआ है, यूनिलीनियर स्कीम ऑफ रिवॉल्यूशन दिया। वो ये मेन पॉइंट यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड कंपैरेटिव एनालिसिस, कंपैरेटिव मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये उन्होंने यूज किया अपनी स्टडीज में। एंड स्ट्रेस ऑन मटेरियल कल्चर, ईबी टायलर ने मटेरियल कल्चर पे स्ट्रेस, बिकॉज इट इज एविडेंटरी, ये एक सॉलिड एविडेंस है अगर मटेरियल कल्चर है। इन मटेरियल कल्चर को स्टडी करते हुए बायसनेस आ सकती है, जो असली सच है वो शायद बाहर ना आए। जो मान लो किसी के रिलीजियस बिलीफ्स हैं, वैल्यू सिस्टम है, वो जरूरी नहीं है हम भी उसी तरीके से समझ पाए, बट मटेरियल कल्चर इज एविडेंटरी, वो तो जैसा है वैसा दिख रहा है। स्कीम ऑफ इवोल्यूशनरी थ्योरी, यूनिलिनियर स्कीम ऑफ इवोल्यूशन एंड हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन, जैसे कि उन्होंने बताया कि आप ये मेरी स्कीम यूज कीजिए, यूनिलिनियर स्कीम ऑफ इवोल्यूशन, और इसको एज अ टूल यूज कीजिए टू रिकंस्ट्रक्ट द कल्चरल हिस्ट्री एज ही डिड इन मैक्सिकन कल्चर स्टडी ऑल्सो। तो अभी जो आर आर मेरिट जी की बुक थी, द थ्रेशोल्ड ऑफ रीजन, इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की, किसमें, ए बी टाइलर जी की स्कीम में। इन्होंने टाइलर के कंसेप्ट को मॉडिफाई कर दिया एनिमिज्म के। इन्होंने कहा कि इन्होंने दिया एनिमेटिज्म। आर आर मेरिट जी ने कहा कि इंस्टेड ऑफ सोल, सोल, अभी एनिमिज्म इज लाइक कि सोल के अराउंड ही सब कुछ घूम रहा है, जो रिलीजियस बिलीफ है वो सब कुछ सोल के अराउंड ही है। बट इन्होंने कहा कि नेचर है जिसने द थीम ऑफ प्रिमिटिव पीपल का जो रिलीजन था उसको डिसाइड किया, नेचर। इन्होंने कहा कि बिलीफ इन वाइड स्प्रेड इम्पर्सनल सुपरनेचुरल फोर्स, एक हर जगह पे एक सुपरनेचुरल फोर्स है, पूरे नेचर में हर जगह पे, हर किसी चीज में एक सुपरनेचुरल फोर्स है जिसको हम अपने बेनिफिट के लिए भी यूज कर सकते हैं थ्रू रिचुअल्स, किसी भी टेक्निक के थ्रू, टेक्निक्स थ्रू रिचुअल्स उसको यूज कर सकते हैं, इसको कहते हैं एनिमेटिज्म। और इन्होंने एक और कंसेप्ट दिया, कंसेप्ट ऑफ माना, और इसी सुपरनेचुरल फोर्स को पोलिनेशियल कल्चर में, इसको एग्जांपल से समझाया उन्होंने, पोलिनेशियल कल्चर में इसी सुपरनेचुरल फोर्स को, जो किसी एक इंसान के पास नहीं है, वो हर जगह प्रेजेंट है नेचर में, इसको माना बोला जाता है इन पोलिनेशियन कल्चर। सो दिस इज एनिमेटिज्म, जो कि इन्होंने अपनी बुक द थ्रेशोल्ड ऑफ रिलीजन इन 1909 पब्लिश किया। सो दीज आर द फर्स्ट टू स्कॉलर्स ऑफ क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म। थैंक यू, and you can download this one pager from my telegram channel. Thank you very much.